Hello everyone, welcome to Success Series. This is your educator Shrishti and we are going to do the sample question paper for the year 2020-21 in which we are going to discuss the pattern of questions that are going to be there for your section B. These are all 3 marks questions. जो भी मार्किंग स्कीम है न्यू सीबीएसई पैटर्न है ये हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है. द लिंक टू दिस वीडियो विल बी देयर इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट देयर. यू विल बी वेल अवेयर कि किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, हाउ योर 80 मार्क्स ऑफ द एसएसटी पेपर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. बट इन दिस लेसन वी विल बी डूइंग एट द मॉडल क्वेश्चन पेपर दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय सीबीएसई. कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको आंसर करना है, ऑल ऑफ दैट आई विल गिव यू अ ब्रीफ थ्रू दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन एवरीबॉडी. All right, so the first question that you see here, why we have written question 17 is because question 1 to 16 are a part of your section A of SST. यहाँ पे क्या होते हैं, MCQ based question होते हैं. This have also been discussed. So question 17 asks, why did Gandhi ji start the non-cooperation movement? Explain. So it is a direct question from your history. अब जैसे कि आप जान रहे हो ये सारे questions 3 marks के होते हैं. So how are you supposed to answer it? Gandhi ji started the non-cooperation movement in the year 1920. Okay, this was a event that happened in 1920. क्योंकि ये एक major event है तो आप इसके year को highlight कर सकते हो to stand out from the crowd. So it was started in 1920 because of various reasons. Some of the reasons being, first reason was against the Rowlatt Act. अब इसमें क्या हुआ था, इसमें सेडिशन ट्रायल्स इनिशिएट किए गए थे. This was an anti-India act that was launched by the British and post this Indians understood कि अब इनको अपने लिए स्टैंड लेनी पड़ेंगी. जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जिसमें कि जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया था राइट एट अ सेक्शन ऑफ पीपल हु हैड गैदर्ड फॉर द बैसाखी सेलिब्रेशंस. सो दिस हैड ऑल्सो अवेकेंड द मासेस. खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, यू गाइज विल नो ऑफ इट. टू विड्रॉ कंप्लीट कोऑपरेशन टुवर्ड्स द ब्रिटिश. अभी तक ये लोग क्या सोच रहे थे, दैट वी विल बी मॉडरेट इन ब्रिटिश अप्रोच. बट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस हैपनिंग्स दे wanted to withdraw the total cooperation and they wanted to establish Swaraj. What is Swaraj? Swaraj is self-rule. So these are some of the reasons why Gandhi ji had started it. Jallianwala Bagh massacre had happened in 1919. You already know of it. Rowlatt Act was in March. This was in April. So back to back बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे जिनसे इंडियंस की पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गई थी. एंड दैट इज वाई गांधी जी हैड टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि अब हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, अब वी विल फाइट फॉर अ फ्री इंडिया. मूविंग टू क्वेश्चन 18, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? Explain the measures and practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. So यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले ये लोग एकजुट नहीं थे, but how did they try to create a sense of collective belonging? What were the measures that were taken? सो यू कैन ईदर डिस्कस दैट. एंड जैसा कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन या फिर पैटर्न डिस्कशन में बताया था कि इस बार कोई चॉइसेस नहीं रहने वाले हैं, ऑल आर गोइंग टू बी कंपल्सरी क्वेश्चंस. only internal choice is going to be provided. So this is a case of an internal choice question जहाँ पे you can either answer this या फिर आप इसको आंसर कर सकते हो. So the second is like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. मतलब इटली में भी पहले से political unison नहीं था, just on the lines of Germany. तो आपको इस statement को support करना है. They are asking you to explain it. So according to me, question 18 में the first option is more direct and more clear. So you should go for this. But if you have in-depth knowledge, you can also opt for this question. तो चलिए देखते हैं. Explain the measures and practices. इसमें क्या होगा? एक तो ideas of la patrie and lay citoyen introduce किया गया था. This brought about a national collective identity. For example, अगर इंडिया का केस ले,
So the national flag, the national songs, they brought about a sense of unity in India. So similarly यहाँ पे कुछ ऐसे मोटो सेलेक्ट किए गए थे, कुछ ऐसी यूनिसन की गई थी जिससे इन्हें लगे कि वी बिलोंग एज फ्रेंच सिटीजन्स एंड नॉट जस्ट एज इंडिविजुअल्स. न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज ऑल्सो चोजन. दिस ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. एस्टेट्स जनरल होता था पहले, अब इट वॉज चेंज टू नेशनल असेंबली फॉर द इलेक्शंस etc. New hymns and songs were composed which spoke about unity, and a practice of uniform laws was made. Uniform laws से क्या होता है? Citizen की equality establish होती है, that the laws are same for everybody, the laws are not different. So uniform laws had been introduced. इस तरीके से क्या हुआ? The French people started feeling that they are part of one nation, and that is how they went forward. So this is how a sense of collective identity was introduced amongst them. यहाँ तक क्लियर होगा. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री. जब भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई एंड राइट 4 पॉइंट्स, क्योंकि कभी आपने कोई पॉइंट शॉर्टन कर दी या फिर आपने कुछ गलत कर दिया, सो यू ऑलवेज हैव अ बैक एंड, यू ऑलवेज have an escape. Okay, you will be saved of not losing out on your marks. So try and do this. Also try and address the question, give a colon and then begin with the points. Do not directly begin with the points. These are certain things आप care कर सकते हो इन चीज़ों की. It will make the paper more presentable. एंड जितने सारे पेपर्स होते हैं फॉर द टीचर्स टू करेक्ट, राइट? सो द मोर यू मेक इट प्रेजेंटेबल, द मोर इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट द आई ऑफ द टीचर एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट. Coming to the or वाला question, like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, एक तो population of Italy was divided according to several dynasties. यहाँ पे कोई एक डायनेस्टी नहीं थी, बहुत सारी डायनेस्टी थी, इसीलिए political fragmentation था, because there was no concrete centralized rule. There were division into 7 states, जैसे कि कोई एरिया सच एज सर्डीनिया, पीडमोंट, यहाँ पे कोई और रूल कर रहा है, पोप इज रूलिंग सम अदर एरिया. सो इन दिस वे इटली वॉज बाइफर्केटेड इनटू 7 डिफरेंट स्टेट्स. कोई एक सिंगल लैंग्वेज नहीं थी, कोई एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जिससे पीपल कुड रिलेट. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस, अ लॉट ऑफ पोलिटिकल फ्रैगमेंटेशन वॉज विटनेस्ड इन इटली जस्ट ऑन द लाइन्स ऑफ जर्मनी. So this will be your answer to this question. You can definitely include more points. Moving forward, question 19 आपका दिया हुआ है, suggest and explain any 3 ways. So please focus on this. You have to suggest the 3 ways, also explain a little bit. So please summary लिख दीजिए for whatever point you're picking up. Just write a 1 or 2 liner to explain the 3 ways that you are discussing to protect land from degradation. So what is this question dealing with? The question is dealing with land degradation. And what are they telling you? Ways to control land degradation in various states of India. This is redundant, इससे important नहीं है. We'll write a general answer on land degradation. यहाँ पे मैंने सिर्फ pointers mention किए हैं, but for example आपने लिखा construction of shelter belts. So you can use this as heading and you can explain this can be done in areas where the wind speed is too high or the areas are dry, so that the land is not uprooted or the land is not washed away because of the strong winds. So the trees, they will act as shelter beds and they will try to protect the land from degradation. फिर आप लिख सकते हो afforestation. There you can explain what is afforestation, how does it help to cup over the ill effect of deforestation which is opposite of it, है ना. सो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने होंगे सारे पॉइंट्स को. ग्रेजिंग कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ओवर ग्रेजिंग की बात करते हैं. सो यू कैन से दैट व्हेन अ लैंड इज लूजिंग मच ऑफ इट्स ग्रीन लश ग्रीननेस, then the people should make sure that they are taking their animals to different lands so that the area does not become deserted. तो ग्रेजिंग कंट्रोल एक आप लिख सकते हो. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, जहाँ पे भी आपको सैंड ड्यून्स वाले एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पे आप थॉर्नी बुशेस प्लांट करो. दिस इज मेनली हैपनिंग इन द डेजर्ट एरियाज. सो इस तरीके से यू विल सपोर्ट द पॉइंट्स दैट यू आर राइटिंग. प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ताकि जो केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है एंड एनी काइंड ऑफ वेस्ट दैट आर देयर which are released from industries, they don't get into your land and pollute the soil and degrade the quality of land. So इस तरीके से आप कोई भी 3 points को लेकर के explain कर सकते हो. You can also write 2 points without the explanation so that you are just on the safer side. एंड टाइम काफ़ी है, मैंने टाइम डिस्कशन, कैसे अपने टाइम को यूज़ करना है, सब कुछ डिस्कस किया है.
Please watch the MCQ video. You will be completely thorough with the SST pattern. Moving to question 20, again you have an internal choice type question in this. एक तो आपको दिया गया है describe any 3 steps taken by the government towards decentralization. So you have to understand the terminology. Decentralization is basically delegation of control. कि एक सेंट्रल अथॉरिटी अगर रहेगी तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहेंगे, बट जब आपके पास प्रॉपर ब्रांचेस में काम होता है या फिर अथॉरिटी डिस्पर्स्ड रहती है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. दिस इज अबाउट द ईयर 1992 दैट वी आर टॉकिंग. और यू कैन ऑल्सो आंसर डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. अगेन आई विल ऑप्ट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की टर्मिनोलॉजी कभी आपको समझ नहीं आया, आपने कुछ गलत लिख दिया, या फिर इट इज टॉकिंग अबाउट द ईयर 1992, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो वी विल यूजुअली अवॉइड इट, बट इफ यू आर वेरी श्योर, गो अहेड. माई ड्यूटी इज टू डिस्कस द आंसर. आई डिस्कस इट फॉर यू एंड सी इफ यू कुड रिलेट टू इट. तो देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने 1992 में कुछ स्टेप्स लिए थे. एक तो इन्होंने ये किया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स में थोड़ा सा इलेक्शन का प्रोसीडियर लाएंगे. सो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इट वाज मेड मैंडेटरी कि अब आपको इलेक्शंस होल्ड करने पड़ेंगे. सो हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि सेंटर यहाँ पे अपनी पावर थोड़ा सा डाइल्यूट कर रही है और डिसेंट्रलाइज कर रही है, एंड इट इज मेकिंग द स्टेट्स ऑल्सो हैव सर्टन पावर. सो इट इज शिफ्टिंग with certain dilution of power in the favor of states. दूसरा इन्होंने किया था, सीट्स रिजर्व कर दी थी SCs, STs, OBCs होगा ये, सॉरी. सो इट इज अदर बैकवर्ड कास्ट, scheduled caste and scheduled tribes. 1/3 of the seats were also reserved for women. स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड सो दैट ये इलेक्शंस को कंडक्ट कर सके इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. सो दिस वर सम ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1992. आई होप एवरीथिंग क्लियर टिल हियर. जो भी बच्चे एग्जाम्स लिखने वाले हैं, कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं न्यू पैटर्न में, डू पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू ईच वन ऑफ यू. कमिंग टू क्वेश्चन 20, अगेन ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है. 3 फेडरल फीचर्स. फेडरल का मीनिंग क्या होता है? What is federalism? Federalism is a key feature of Indian democracy. It means more than one level of government. So center भी है, state भी है, we have local government as well. This is what federalism means. कि हम लोग एक federal state है with a unitary bias, क्योंकि कुछ control center के पास ज़्यादा है. अब हम लोग यहाँ पे सेंट्रल फीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, उन फीचर्स की बात कर रहे हैं जो ये दिखाता है कि स्टेट्स के पास भी थोड़ी बहुत पावर है इन इंडिया. सो इट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ 3 लिस्ट. ये 3 लिस्ट क्या होते हैं? बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं. तो जो लिस्ट्स हैं जिनमें सब्जेक्ट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल यूनियन सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज द पावर. स्टेट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएंगी. एंड कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में डाले जाते हैं. यहाँ पे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, बट अगर कोई क्लैशेस होंगे इन दोनों के बीच तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर प्रिवेल करेगा. सो दिस इज वन काइंड ऑफ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि क्या हो रहा है? पावर डिवॉल्व किया गया है टुवर्ड्स द स्टेट. दैट इज वाई इट इज फेडरल इन नेचर. कमिंग टू इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल इंटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स. क्योंकि क्यों? अगर कोई भी इंटर स्टेट या इंटर सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट्स हो गई तो जुडिशरी विल नॉट फेवर द सेंटर. इट विल बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी दैट विल गिव द इम्पार्शियल जजमेंट. तो ये भी एक फेडरल फीचर है कि स्टेट्स की भी इक्वल पावर है टू सीक जुडिशियल सपोर्ट अगर सेंट्रल उनकी पावर को एनक्रोच करे. देन वी हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर. इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल. इट इज राज्यसभा एंड लोकसभा. तो लोकसभा फॉर द पीपल होती है, राइट, एंड राज्यसभा में स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है. सो दिस इज अगेन अ फेडरल फीचर, क्योंकि हम लोग स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एंड दे आर द वंस दैट सिट एंड रिप्रेजेंट अस इन द पार्लियामेंट. सो दिस आर द 3 फेडरल फीचर्स. और भी कई फीचर्स है, डुअल पॉलिटी हो गया. सो यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. कमिंग टू क्वेश्चन 21, यहाँ पे मैंने आपको एक मॉडल आंसर नहीं दिया है बिकॉज दिस इज अ सेल्फ बेस्ड क्वेश्चन. आई विल जस्ट डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हाउ यू कैन अप्रोच इट. So question 21, imagine yourself to be XYZ. That is a member of a women self-help group. So यहाँ पे हम लोग self-help group का नाम लिखेंगे, suppose आत्मनिर्भर. Okay? And मैं हूँ सृष्टि. So I am XYZ here. Okay?
I am representing XYZ. I am a member of this group. This is a self-help group which is known as SHG. You have to analyze the ways through which this group is going to provide loan to its members. अब सृष्टि जैसे कई सारे members होंगे इस group में. राज हो गया, ओके, आर्या हो गई, अनन्या हो गई. सो इस तरीके से सपोज यू विल हैव 15 to 20 members. ओके, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एट रेगुलर इंटरवल्स स्मॉल सम्स ऑफ मनी पूल इन करेंगे. दे विल पूल इन स्मॉल सम्स ऑफ मनी एंड यहाँ पे सेविंग्स होती जाएंगी. अब जिनको भी ज़रूरत होगी वो लोग इस सेविंग्स में से लोन ले लेते हैं जो कि ये लोग रिटर्न करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स. ओके, so they get loans from here and they return this at regular intervals. In this way the self-help group helps provide loan to its members. One very good example of a successful self-help group is Grameen Bank of Bangladesh. इनके जो ओनर थे, लीडर थे, इनफैक्ट यूसुफ खान, दिस मैन हैज ऑल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइजेस एज वेल फॉर दिस स्टुपेंडस जॉब. ओके, फॉर दिस वेरी फैब्यूलस जॉब जहाँ पे इन्होंने एक एसएचजी के थ्रू बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस लाए थे. तो इस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि इनका नेम सजेस्ट करता है, दे सेल्फ हेल्प देमसेल्व्स. ये लोग खुद ही पूल इन करते हैं मनी एंड देन हूसोएवर रिक्वायर्स इट दे लेंड आउट अ बिगर सम टू दैट पर्सन. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प. आपको टाइम पे फिर कहीं पे लोन के लिए अप्रोच नहीं करना पड़ता है, यू डू इट विद इन द मेंबर्स इटसेल्फ. Coming to question 22, the issue of sustainability is important for development. So एक statement दे दिया गया है, you have to examine it. So you can write, as per the above say, the issue of sustainability is important for development is absolutely on the current lines because of the following reasons. So you can write sustainable development. What is the meaning of sustainable development? पहले वो explain कर दो कि हम लोग judiciously resources को use करेंगे. क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, दे आर लिमिटेड. सो इट शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड, राइट. आज इतना यूज़ नहीं करेंगे कि कल के जनरेशन्स को मिले ही नहीं. दैट इज़ द वेरी एसेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो फुलफिल योर प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स. इट हेल्प्स टू कीप अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि क्या होता है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर हम उन्हें सस्टेनेबली यूज़ करें तो वी विल बी एबल टू कंजर्व देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस. तो ये रिप्लेनिश भी हो जाएंगे. अगर नहीं भी होते हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, तो वो लोग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेंगे. सो अ बैलेंस विल बी देयर. इट अवॉइड्स ओवर यूज एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. तो इस तरीके से आपका ये जो स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में, ये एब्सोल्यूटली एक्सप्लेन हो जाएगा एंड यू विल हैव सफिशिएंट रीजंस टू कॉल दिस स्टेटमेंट करेक्ट. So इस तरीके से you can solve section B part of your SST paper. With that we complete the section B. Thank you so much for staying connected. कुछ भी doubts हो, leave it in the comment section. I'll reply to you guys. And you can follow our channel on Facebook, on Instagram, on Twitter. And if you're watching this lesson on YouTube, please hit the bell icon. Lend us all your support and love so that we bring more awesome courses for you. Looking forward to meet you with the next set of lessons. Till then, take care, bye-bye, and stay safe.